Hello friends, now we are doing our next topic, that is differentiability. Now what do you mean by differentiability? Suppose f is a real function and c is a point in its domain. So the derivative of f at c is defined by f dash c. This is equals to limit h tends to 0 f of c plus h minus f of c upon h. This we have studied in class 11th. Derivative by first principle, and in class 11th we have solved the differentiation of trigonometric function, polynomial function by first principle. Now we will do it as a result. Algebra of derivatives. Algebra means to say plus, minus, multiplication and division. So u plus minus v dash. Dash is denoted as a derivative. You can write it as dy upon dx also if y is a function of x. So u plus minus v and after that it's a derivative. This is equals to u dash plus minus जो भी दिया हुआ है आपको प्लस माइनस v डैश. दैट मीन्स उन दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव करें और फिर हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें. नेक्स्ट द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस एंड आफ्टर दैट इट्स डेरिवेटिव. दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव. दिस इज नोन एज द लाइबनिज रूल. And u upon v and after that its derivative. This is equals to denominator का square यानी v square and v as it is derivative of u minus u as it is derivative of v. These results we have studied in class 11th. Now derivative of certain standard functions. Derivative of x raised to power n. Derivative of x raised to power n, this is equals to power आगे n into x raised to power n minus 1. And next derivative of sin x, this is equals to cos x. Derivative of cos x, this is equals to minus sin x. Derivative of tangent x, this is equals to secant square x. Derivative of cosec x, this is equals to minus cosec x cot x. And derivative of secant x, this is equals to secant x tangent x. Derivative of cot x, this is equals to minus cosec square x. These standard results we will learn it. Now this next result. Every differentiable function is continuous but its converse is not true. Means if a function is given to you and that is differentiable, then it must be continuous. But if a continuous function is given, then it must not be differentiable function. It may be differentiable or may not be differentiable. Now next, that is the chain rule. Find the derivative of the function given by f of x equals to sine of x square. Now f of x, this is equals to sine of x square. चेन रूल मीन्स टू से पहले आपने फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, फिर उसके बाद जो भी नेक्स्ट स्टेप्स खुलते जाएंगे हमने उसका डेरिवेटिव करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने क्लासरूम में से कोई चीज़ लेनी है और फिलहाल स्कूल सारे बंद हैं, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास सबसे फर्स्टली लॉक क्या कौन सा होगा? स्कूल का लॉक होगा. तो हम स्कूल के मेन गेट के लॉक को खोलेंगे एंड आफ्टर दैट रिसेप्शन का लॉक, तो उसको खोलोगे, फिर आपके क्लासरूम का लॉक, और तब जाके कहीं आप उसमें से कोई भी चीज़ ले सकते हो.
सेम एज यहाँ पर भी यही स्टेप है। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे एफ डैश एक्स दिस इज इक्वल्स टू, तो सबसे पहले हम इस साइन का डेरिवेटिव करेंगे। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, दैट इज कोस। तो जो उसका एंगल है वो एज इट इज रहेगा। जैसे जब अपन ने स्कूल का मेन गेट खोला तब उसके जो बाकी लॉक्स हैं रिसेप्शन का और रूम का वो सारे बिल्कुल एज इट इज सेम पड़े हैं, यानी वो लगे हुए हैं, वो नहीं खुले। तो अब नेक्स्ट हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर n दिस इज इक्वल्स टू n x रेज टू पावर n माइनस 1। दिस इज इक्वल्स टू 2x cos of x square. That's your answer. This is known as the chain rule. Now derivative of tangent 2x plus 3. So let f of x equals to tangent of 2x plus 3. Now f dash x. First of all the derivative of tangent x. Tangent का derivative secant square. Angle as it is into derivative of 2x plus 3. So this is equals to secant square 2x plus 3 into डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3। तो 2x का डेरिवेटिव 2 एंड 3 है आपके पास कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 secant square 2x plus 3। Now question third, differentiate sine of cos x square with respect to x. So let f of x this is equals to sine of cos x square. So f dash x this is equals to sine का डेरिवेटिव cos, बाकी सब कुछ as it is into डेरिवेटिव ऑफ cos of x square. So this is equals to cos of cos x square into now डेरिवेटिव ऑफ cos x. cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एंड एंगल एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर. नाउ दिस इज इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर cos of cos x square and derivative of x square this is equals to 2x. So your answer is minus 2x sine of x square cos of cos x square. Now question number 6 from exercise 5.2 NCERT. f of x equals to cos of x cube into sine square x raised to power 5. f dash x this is equals to, अब दो फंक्शंस हैं हमारे पास यहाँ। फर्स्टली हम cos ऑफ x क्यूब को एज इट इज रख लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर x रेज टू पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर x रेज टू पावर 5 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ cos of x cube. So this is equals to cos of x cube as it is. Now पहले आपके पास यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव ऑफ यानी साइन ऑफ x रेज टू पावर 5 और उसकी पावर है प्लस साइन स्क्वायर x रेज टू पावर 5 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ कोस ऑफ x क्यूब। तो कोस का डेरिवेटिव करोगे माइनस साइन एंगल एज इट इज इनटू
derivative of x cube. Is this okay? Now this is equals to cos of x cube. This is equals to यहाँ पे पावर का, तो पावर आगे जो भी यहाँ पे फंक्शन है वो एज इट इज हो गया एंड इट्स रेज टू पावर 2 - 1 यानी 1 रह गया इनटू बाय द चेन रूल। तो जो फंक्शन है हमारा वो एज इट इज रह गया यानी उसका डेरिवेटिव करना भी रहता है। प्लस माइनस माइनस हो गया, साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5 साइन ऑफ एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव दैट इज 3x स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट स्टेप, cos of 2 cos of x cube sine of x raised to power 5. Now derivative of sine x raised to power 5. Sine का डेरिवेटिव cos x raised to power 5 और x raised to power 5 का भी डेरिवेटिव एज इट इज पड़ा है करने के लिए, माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x रेज टू पावर 5 साइन ऑफ x क्यूब। दिस इज इक्वल्स टू 2 cos of x क्यूब साइन ऑफ x रेज टू पावर 5 और cos of x रेज टू पावर 5 and derivative of x raised to power 5. This is equals to 5x raised to power 4 minus 3x square sin square x raised to power 5 sin of x cube. ठीक है, now 2 sin a sin b. This is equals to sin 2 sin a cos a, एंगल सेम है तो 2 sin a cos a 11th क्लास में हमने किया भी था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, दैट इज इक्वल्स टू sin 2a. सो यू कैन राइट हेयर sin 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 5. ये 5 आपके पास बाहर है और x रेज टू पावर 4 भी हम यहीं लिख लेते हैं, तो रिमेनिंग रह गया आपका cos ऑफ x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x रेज टू पावर 5 साइन ऑफ x क्यूब. सो दिस इज योर आंसर. Now question number 7 from exercise 5.2 NCERT. f of x equals to 2 square root of cot of x square. So this is equals to 2 into cot of x square and raised to power 1 by 2. So f dash x. So by chain rule first of all हम पावर का करेंगे, 2 इंटू पावर आगे 1 बाई 2 कोट ऑफ एक्स स्क्वायर रेज टू पावर हाफ माइनस 1, हाफ माइनस 1 यानी माइनस 1 बाई 2. नाउ डेरिवेटिव ऑफ कोट ऑफ एक्स स्क्वायर एज इट इज. सो दिस इज इक्वल्स टू 2 से हमारा यहाँ 2 कैंसिल हो गया, तो पावर क्योंकि नेगेटिव है तो हम इस फंक्शन को नीचे डिनोमिनेटर में ऐसे लिख सकते हैं, cot ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया. नाउ डेरिवेटिव ऑफ कोट, कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर, एंगल एज इट इज. नाउ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कोट ऑफ एक्स स्क्वायर into derivative of x square that is 2x.
So this is equals to minus 2x cosec square x square upon square root of cot of x square. बिकॉज हम डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं रखते तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइजिंग कर लेंगे. सो रेशनलाइजिंग विद स्क्वायर रूट ऑफ cot of x square so this is equals to minus 2x cosec square x square into square root of cot of x square upon square root into square root आपके पास फुल टर्म होगी cot of x square. Now cosec square means to say 1 upon sin square and cot of x square this means to say cos upon sin. तो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया. सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 2x स्क्वायर रूट ऑफ cot of x square अपॉन cos of x square. यहाँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचेगा तो यहाँ कोज अपॉन साइन होगा, वो साइन से एक साइन कैंसिल हो गया तो साइन स्क्वायर कोज ऑफ एक्स स्क्वायर ठीक कर रहे थे हम, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बच गया. सो दिस इज योर आंसर. Now question number 10th from exercise 5.2. Prove that the greatest integer function defined by f of x equals to x in greatest integer x lies between 0 to 3 is not differentiable at x equals to 1 and x equals to 2. I will prove it for x equals to 1 and rest is for yours. Now, as we have already studied, a function is said to be differentiable if left hand derivative equals to right hand derivative. ये हमने 11th क्लास में भी स्टडी किया था, ठीक है. और इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी मैंने फंक्शन के डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन दी थी, तो उसी वे से हम इसको चेक करेंगे. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फर्स्टली एफ डैश 1 पर चेक कर रहे हैं हम. दिस इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 1 माइनस h अपॉन 1 माइनस 1 माइनस h. So this is equals to लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आप 1 लिख लोगे माइनस 1 माइनस h अपॉन 1 माइनस 1 0 माइनस माइनस प्लस हो गया h रह गया आपके पास. सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0. अब 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 क्योंकि खुद ही एक इंटीजर है तो 1 ही आएगा माइनस 1 माइनस h यानी 1 के अंदर भी हम समथिंग कुछ माइनस कर रहे हैं. तो 1 के अंदर कुछ माइनस करें तो हम स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट भी अगर हम कहें माइनस कर रहे हैं तो 0.999 समथिंग आएगा. तो 0.999 समथिंग के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, दैट इज 0 अपॉन h. सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन h और h की लिमिट 0 पुट करोगे दैट इज इन्फिनिटी. 1 upon 0 that is equals to infinity. Now right hand derivative f dash 1 this is equals to limit h tends to 0 f of 1 plus h minus f of 1 upon 1 plus h minus 1. 1 से 1 cancel हो गया. So this is equals to limit h tends to 0
So 1 plus h minus greatest integer of 1 upon h. अब 1 में समथिंग हम ऐड कर रहे हैं. सपोज मिनिमम से मिनिमम आप 0.0001 भी ऐड करते हो तो आपके पास क्या बना 1.00001. सो उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हुआ 1 माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होगा अपॉन h. सो 1 माइनस 1 इज 0. अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था इन्फिनिटी, अब राइट हैंड डेरिवेटिव है 0. So since left hand derivative is not equals to right hand derivative, so f is not differentiable. So for x equals to 2, do it yourself. Thank you and have a nice day. Now you can complete exercise 5.2 as soon as possible.